Welcome to the podcast. This is Usman Asad, Chief Learning Officer at IKL. IKL is an executive learning powerhouse at University of Management and Technology. We have been in the business for the last 20 years. Today, I'm delighted to have our guest today with us, Mr. Khalid Iqbal, who has over 20 years of HR leading experience at various industries across Pakistan. And sir, over to you. Kindly, if you could introduce yourself a little bit more in detail before we take on the session formally. Sure. Thank you very much for inviting me to this podcast. Or up to it's more than 20 years, so feels pretty archaic in that sense. So it's been I've worked across a lot of industries. Most recently in the pharma industry. So I was in fertilizer. And in engineering and in FMCG and in educational sector also. So all in all, almost 25 years been working in business and also in HR. Mm-hmm. And again, it's a pleasure to come to UMT and especially to IKL. And I know why you say that, because you are you're a UMT alumni, and I believe you have been taking some courses, precisely teaching some courses at UMT as well. Yeah. So I think right after my initial sort of jobs at LUMS, we got this opportunity to sort of further my education. So उस दौरान में I had this opportunity to study technology management almost 25 years ago. So the best part about this place is that they were very, very proactive in that sense. 25 years ago, mm-hmm. they were already teaching technology and all of that side of it. Okay. So वो भी रहा, and then I had an opportunity to teach here also some HR courses and everything. Okay. So it's a pleasure to be back here. All right, that's good. Khalid, बताइए that nicely leads up to this question. You're now a CHRO at a very well-known company, CCL Holdings. And when you look back, your journey from UMT all the way till the position that you are now at, what do you think have been pivotal points or the areas which have propelled you to be here today in this position? I think very interesting question. And Zahir, वो कहते हैं ना in hindsight, the vision is always 2020. Mm-hmm. So always saying बहुत अच्छा ये किया step किया. So I think दो चीज़ें अहम रही, and I'll sort of try to be bilingual in the sense कि बहुत ज़्यादा हमें वो ना हो कि हमको ऐसे words इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे audience कहें जी पता नहीं why they're sort of using those words. So देखिए एक दो चीज़ें नहीं तो you have to stay relevant, right? So initially I started from education. I started my career from LUMS. Then I moved into international NGOs, British Council थी. So learning बहुत अच्छी रही, and initially my work was more about business, right? P&L संभाल रहे हैं, products and all of that part. But I think as the industry moves, as the learning sort of curves move, you have to stay relevant. So आप तो पढ़ते रहें, आप पढ़ें, समझें नई technologies क्या आ रही हैं. And also that really helped me was कि whatever the industry was moving through, so I went through accordingly, into that side. And around 20 years ago, फिर वो HR sort of happened. I moved into the training side of the British Council. And फिर वहाँ से वाला HR वाली जर्नी दोबारा से sort of start हो गया. Started from learning in HR in LUMS. And then फिर of course वो जर्नी रही. So I think staying relevant is important. And secondly, upskilling करते रहें अपने आप को. ऐसा नहीं कि वो आपने एकदम सीख लिया. Of course ऐसा नहीं, because technology दुनिया हर चीज़ move कर रही है. And so is the humans, right? Essentially, और फिर आपने भी move करना है उनके साथ. तो आप कहें जी नहीं मेरा तो ये field है, नहीं, वो field खत्म हो जाएंगी. I'm not sure कि जिन fields में अभी हमें next 4 to 5 years में वो रहेंगी कि नहीं रहेंगी. But wherever they are, the important thing is then you stay relevant. So you move along the technology, along the people development, along the side, the way society is developing. So I think that helped me accordingly, and again, I enjoyed the journey. All right, cool. Why HR? मैंने आपसे ये पर्सनली भी क्वेश्चन पूछा था, बट आई वांट कि हम पॉडकास्ट में भी इसको जरूर एड्रेस करें कि ये HR was it an accident, ये हो गया या intentional move थी? How did it work out for you? So my background is not really HR, right? थोड़ी सी टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि थोड़ी टेक्निकल साइड की है. So more like biochemistry और इस किस्म की पढ़ाई थी ना. Then I sort of switched to economics. थोड़ा वो पढ़ाई की. फिर टेक्नोलॉजी आना शुरू होगी. सो अब से कोई 2-2.5 decades पहले मूव टू टेक्नोलॉजी साइड ऑफ इट. सो इनिशियली इट वाजंट HR. तो शुरू में तो शायद HR इतनी थी भी नहीं इन द लेट 90s when we were going through studies. But alongside some of the jobs, I sort of realized that I had the skill set. Of course, the people who were sort of mentoring me, they helped me out. That's an area that should work in. समझा सकते हैं लोगों की अच्छी कोचिंग कर लेते हैं, do good training. Similarly, you probably have an eye in terms of finding out the talent in people. So वहाँ से फिर I got an opportunity. Training से मैं इंटरव्यू हुआ, तो और फिर करते करते I went through rewards, I went through various other facets of HR. And फिर बहुत मौका मिला इंडस्ट्रियल साइड के ऊपर भी मैनेज करने का, IR को वर्सेस MNCs में काम करने का.
थोड़ा सा मौका कुछ कंट्रीज़ को मैनेज करने का मिला. सो HR हैपेंड वेरी वेरी ऑर्गेनिकली. सो अचानक कुछ नहीं था, बट आई थिंक स्किल सेट था. द मेंटर्स सॉर्ट ऑफ हेल्प यू आउट आल्सो, द पीपल दैट यू टॉक टू. आपने अपने दो बातें की जो क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर मी. एक तो पर्सनल ग्रोथ की आपने बात की, तो प्लीज़ डू लेट अस नो कि वो कौन से ऐसे मूवमेंट्स हैं या कौन से ऐसे सर्टिफिकेशंस थी या कोर्सेज थे जो आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अटेंड किए एंड दैट हैव बीन वेरी यूजफुल फॉर यू in terms of getting you to the leadership position here today. And secondly, also you talked about mentors. And do let us know what is the role of a mentor, because I'm pretty sure हमारे young HR professionals, L&D professionals will be watching this podcast today. मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि आपके ज़ुबानी वो जो सुन सकें कि mentors का रोल क्या है. अच्छा, so both sides of it. पहले आपने बात की in terms of personal journey, right? So थोड़ी सी trying के ना controversial बातें ना करूँ, right? But I think so degrees are important, right? अच्छा है, I think base ज़रूरी है, but base का excel करने के लिए certificate या degree से ज़्यादा probably आपको skill देखने की ज़रूरत है. और उसके लिए जो भी आपकी लर्निंग है उसको सॉर्ट ऑफ वो करने की ज़रूरत है कि लोग समझ सकें कि वो मटीरियलाइज हो रही है, राइट, इन टर्म्स ऑफ सब प्रैक्टिकल गेन्स. सो डिग्री तो ठीक है, राइट, आपने ली, हाँ, ज़बरदस्त. तो मेरा ख्याल आई हैड अच्छा था कि आई हैड अ टेक्निकल बैकग्राउंड, सो ऑल्सो गोइंग थ्रू थोड़ी सी टफ स्टडीज़ इन टर्म्स ऑफ साइंसेज, अंडरस्टैंडिंग the bigger nature of physics and chemistry. मुझे भी बहुत शौक है, still study a lot of books on physics and religion, all of that part. तो बड़ा शौक है, उसके ऊपर भी शायद हम आगे चल के बात करेंगे. सो वो तो थी, लेकिन ये सॉर्ट ऑफ केप्ट रीडिंग थ्रू, किताबें पढ़ें आप, आउटसाइड ऑफ कोर्स पढ़ें, ठीक है, इवन इफ यू आर स्टूडेंट, तो कोर्स अपनी जगह, ठीक है, बट ज़रा ज़रूरी है कि आप जनरल नॉलेज भी समझें. और जनरल नॉलेज का मतलब ये नहीं कि करंट अफेयर, जनरल नॉलेज का मतलब ऑल्टरनेट पॉइंट्स ऑफ व्यू. जाहिर है कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो थोड़े मुश्किल हैं, उनके ऊपर आप बात करते हुए डरते हैं, उनके ऊपर आप बात करते हुए बाज़ का सेंसिटिविटी आती है, फिर आपके अंदर ये हौसला ज़रूर होना चाहिए कि आप पढ़ तो सकें कम से कम ऑल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू. दुनिया में हर टॉपिक के ऊपर ऑल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक, और एक नहीं, एक से ज़्यादा हो सकता है. उससे आपका विजन वाइड होता है. सो वो जनरली हेल्प्स, राइट. आपने सर्टिफिकेशन की बात की, तो आई थिंक कोचिंग, एट वन पॉइंट टाइम आई वेंट इनटू कोचिंग, सो उसकी सर्टिफिकेशन वाज वेरी हेल्पफुल, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू मैनेज टीम्स, हाउ टू मैनेज जनरली organizations, instead of directing people, coach करने का. So I think वो important था. Around 2009-10 के आसपास I was working with Nestle, so they gave me this opportunity to get into coaching, and then I got a certification. बड़ी अच्छी मुझे मिल गई. I went did a lot of coaching, तो उससे बहुत फ़ायदा हुआ leadership style में भी, and then I at one point time I was the master coach also in terms of helping the organization. तो वो I think एक, and फिर अगेन स्टेइंग रेलेवेंट टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज विद इन योर फील्ड, जो भी है. सो वो दो चीज़ों का फ़ायदा रहा. अब इसी बात से सेकंड बात, जो आपने मेंटरिंग वाली बात की, सो देखें, मेंटर्स कुछ फॉर्मल होते हैं, कुछ इनफॉर्मल भी होते हैं, राइट. यू अंडरस्टैंड कि आपका ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है, आपकी लाइफ में कोई ऐसे शख्सियत हो सकती है जो आए. सो आई थिंक आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे जितने भी बॉसेस मिले, राइट, वो दे वेरी गुड, राइट. स्पेशली फंक्शनल साइड पे लोग ऐसे थे जिन्होंने बड़ा ग्रूम किया, राइट. एंड नॉट ओनली जस्ट ग्रूमिंग इन टर्म्स ऑफ योर प्रेजेंस, इन टर्म्स ऑफ योर टेक्निकल साइड, बट ऑल्सो लाइफ इन जनरल. सो आइडियल है कि अगर आपका जो बॉस है, राइट, या एनीबडी इन योर ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज यू स्पेंड मोस्ट ऑफ योर अवेक लाइफ इन ऑफिस, राइट, ऑर्गेनाइजेशन में, UMT, IKL में, आप सारा टाइम यहाँ पे गुजार रहे हैं, 10 घंटे तो आपके यहाँ लगने हैं. So if you find somebody who can inspire you, right, and sort of guide you also, subtle formal coaching भी सही है और formal mentoring भी सही है, बट उससे बड़ा फ़ायदा रहता है कि इंस्पायर आप समझते हैं कि इन्होंने क्या किया ज़िंदगी में, प्रैक्टिकलिटी वाइज आप सीख सकते हैं. सो सेकंड ये कि जनरली माय बॉसेस वेयर एवर आई वेंट थ्रू वर रियली हेल्पफुल. नेस्लेस की एंड लम्स की एग्जांपल लेता हूँ, बहुत ऐसे अच्छे लोग, स्पेशली द CEOs इन सर्टन केसेस वर सो इंस्पायरिंग कि उनसे बहुत आपको फ़ायदा हुआ. एंड खैर वो सवाल का हिस्सा तो नहीं, बट एक चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ वो कि स्टे रेलेवेंट टू द बिजनेस ऑल्सो, राइट. सो अगर आप फंक्शनल एरिया में, HR में है, टेक्नोलॉजी में है, फाइनेंस में है, किसी भी एरिया में, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द बिजनेस ऑल्सो, क्योंकि एसेंशियली इट बॉइल्स डाउन टू द मनी, राइट. सो इफ यू अंडरस्टैंड हाउ द ऑर्गेनाइजेशन और दैट कल्चर ऑर्गेनाइजेशन primarily is making money, वैल्यू एडिशन है कि, और आपको समझ आती है, तो फिर ऑफ कोर्स यू वुड लर्न द बिजनेस ऑल्सो. वो आपको कोच और मेंटर भी अच्छा कर रही होगी वो ऑर्गेनाइजेशन, और आप सीख भी सकेंगे. सही है. तो यहाँ पे एक बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन ये है कि ऑफ कोर्स वी ऑल स्टार्ट अवर करियर, जी, एंड देयर आर ओनली फ्यू पर्सन्स हु रीच टू द टॉप, वो लीडरशिप पोजीशंस पे आ पाते हैं. हाँ. उसमें इन एडिशन टू दीज टू थिंग्स दैट वी जस्ट टॉक्ड अबाउट, और ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आपने महसूस किए, देखे अपने मेंटर्स में, कोलीग्स में, and within yourself as well, that have brought you
to a leadership position? वो क्या key traits हैं? I think most of us would like to know those. अच्छा देखें controversial है ठीक है तो कोशिश करने के बावजूद देंगे so I'll try to solve of course देखें क्योंकि जब आप बात करते हैं तो सिर्फ अच्छी बात तो नहीं है राइट आपने ऐसी बातें भी करनी जिससे लोगों के से कहते हैं ना दिमाग के दिए रोशन हो सके राइट हाँ वो ज़रूरी है ताकि वो सोचें कि अच्छा ऐसा भी है तो आई थिंक 50-50 है एक तो लक बहुत है राइट ठीक है जिंदगी में किस्मत भी है राइट एक काउंट्स अ लॉट राइट सो आप जो मर्जी कहें एसेंशियली यू बोर्न इन अ कंट्री राइट यू कुड हैव बोर्न इन अनदर कंट्री प्लेस होम आई डोंट नो व्हाटएवर सो यू बोर्न सो वेरी लकी सो पहले तो आपको ग्रेटिट्यूड होना चाहिए राइट कि आप जहाँ भी आए हैं अल्लाह का बहुत शुक्र है ना आप इतनी अच्छी जगह आए हैं जिससे आपको इतना अच्छा सब कुछ मिला और वो लक है राइट वो अपनी मर्जी से उस घर में उस मुल्क में शहर में पैदा अल्लाह की देन है बिल्कुल अब आप ये भी कह सकते हैं यार मैं इस मुल्क में पैदा हुआ इस शहर में यार क्या मुझे कुछ मिला नहीं तो आपसे नीचे भी बहुत से मुल्क शहर लोग फलात हर तरह के तो एक तो ग्रेटिट्यूड ज़रूरी है जहाँ पे भी आए और लक से आप बहुत अच्छी जगह है उसके बाद ऑफ कोर्स सेकंड चीज़ें तो अगेन दो आ जाती हैं विच इज़ कहते हैं ना कि हार्ड वर्क और लक तो आ गई हार्ड वर्क और कॉम्पिटेंस ठीक है सो लक आई थिंक 50% है बहुत इंपॉर्टेंट बट उसका मतलब ये नहीं कि वो आप पहुंच गए एक जगह फिर आपने मेहनत करनी है ठीक है सो कॉम्पिटेंस अपनी जगह है सब कुछ है IQ हो सकता है बहुत अच्छा हो सकता है बट हार्ड वर्क आई थिंक इज डेफिनेट वो आपने करना ही करना है वो नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स वो कहते हैं ना क्या हार्ड वर्क बीट्स लक हार्ड वर्क बीट्स कॉम्पिटेंस सो वो वाला हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट आई थिंक वो बड़ा ज़रूरी है आप जो भी काम करें दिल लगा के करें करते जाएं एसेंशियली रीच हो सकता है टॉप पे ना पहुँचे बट एक स्टेप नीचे आ जाएं कहीं ना कहीं तो पहुँचेंगे बट ये नहीं कि आप कोशिश करते जा रहे हैं आप सीख तो रहे हैं ना जी एंड यू आर गेटिंग एक्सपर्ट इनटू अ स्पेसिफिक एरिया और जो हमने पहले बात की कि आप यू आर स्टेइंग रेलेवेंट ऑल्सो तो ये नहीं कि आप एक सेम बटन बार बार दबा रहे हैं आप कह रहे हैं ये बटन दबा लिया समझ आ गई इसी से रेलेवेंट नेक्स्ट बटन क्या हो सकता है या 2 बटन दबाने के लिए मुझे कोई और लीवर मूव करना है क्या करना है बट अगर आप कहीं नहीं ठंड है सुकून है जो है वो सही है और इसी पे ठीक है मिलना होगा तो मिल जाएगा तो देखें वो बड़ा डायनामिक है सिचुएशन लक तो चल ही रही है बट लक के लिए बेसिस होना जरूरी है विच इज़ हार्ड वर्क तो वो आई थिंक हार्ड वर्क इज इम्पॉर्टेंट इज द की एंड एसेंशियली रीच तो और एक बात ये भी कि थोड़े ख्वाब भी देखें राइट ड्रीम बिग ड्रीम ऑफ कोर्स बिग राइट तो करें एंड देन आप सोचेंगे आप बिलीव करेंगे तो चलेंगे अगर आपने कह दिया मेरी सर्कमस्टांसेस सही नहीं थे मेरा शहर मुल्क सही नहीं है मेरी एजुकेशन नहीं पैसे नहीं सो एसेंशियली मैं ड्रीम भी नहीं रहे तो ड्रीम पे तो कोई पैसे नहीं लग रहे राइट द पॉइंट इज देखें एंड देन यू वाई फॉर दैट प्रैक्टिकल रहें ग्राउंडेड रहें और फिर उसके लिए सोचें कि कल नहीं मैंने बन जाना CEO राइट या मैंने किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ नहीं पहुँच जाना है मैंने एसेंशियली वो टेक टाइम तो उसके स्टेप्स क्या हैं और प्रैक्टिकलिटी वाइज चलते रहें मिल जाएगा ग्रेटिट्यूड दिखाएं और काम करते जाएं बट एक चीज़ जो मैं कहता हूँ आई ट्राई माई सेल्फ भी कि प्राइड और वो ना वैनिटी वो नहीं आनी चाहिए ना वो उससे ज़रा बचने की कोशिश करें आई थिंक तो अच्छी जगह वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें ना पड़ें जहाँ पर चाहे अल्लाह का बहुत शुक्र है जी That's good. That's great. अच्छा ये बताइए कि because you of course primarily now in the HR field जी and various new technologies have been coming in the past also. True that. आज भी आ रही हैं and very recently we have been talking all about artificial intelligence. True that, yeah. Where do you think these new technologies and especially artificial intelligence in terms of HRs, recruitment, learning and development, so on and so forth? If you could summarize for us, where do you think your vision of how AI is going to impact us? Where is it taking us? I know it's a very difficult question because very difficult to see 3 years down the road. Of course. What's going to happen? I true that, but at least, I mean, if you have given it a thought, which I'm sure you have, I think आपके क्या जहन में आ रहा है कि AI हमारे साथ कैसा सलूक करने वाली है? अच्छा मेरा तो लगता है कि यानी जाहिर है मेरी अपनी सोच है जाहिर है आई एम नॉट श्योर नोबडी हैज सीन फ्यूचर से आपने भी कहा आई थिंक 3 स्टेप लग रहे हैं राइट कि अभी तो बिल्कुल शुरू है वी जस्ट स्टार्टेड सीइंग हम कहीं और भी बैठे हुए एक डिस्कशन कर रहे थे राइट जो आप ही होस्ट कर रहे थे दैट पैनल डिस्कशन एचआर लीडर्स फोरम जी हाँ सो वो यही थी कि ना देखिए अभी तो मुझे लग रहा है इट्स एक्साइटिंग टाइम राइट बट अभी स्टिल स्क्रैचिंग द सर्फेस राइट अभी तो हम वो जो AI वाला पार्ट राइट वो देख रहे हैं ना और वो जिस तरह जाहिर हम भी ऑनलाइन देखते हैं पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं कि जो AI है राइट फिर वो आई डोंट नो वो एजेंटिक्स आ जाएगा जो आजकल आ भी गए ना एजेंट्स आने शुरू हो गए हैं वो स्मार्ट एजेंट्स फिर हम मोस्ट प्रॉब्ली वो जो AGI की तरफ जाना शुरू हो गया विच इज़ आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की विच वुड कनेक्ट वेरियस फैसेट्स वेरियस सॉर्ट ऑफ सब AIs जुड़ेगा बड़ा बनेगा राइट सो देखने में लग रहा है एंड देन इवेंचुअली वील प्रॉब्ली बी गेटिंग इनटू जो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे सो अभी तो हम AI पे हैं और एजेंटिक्स के ट्रांजिशन पे हैं काइंड ऑफ स्क्रैचिंग द सरफेस फॉर नाउ जी हाँ एंड देन जब AGI आएगा तो फिर बहुत तेज़ी से होगा एंड एसेंशियली जब SI पे आएंगे तो होपफुली आई एम नॉट श्योर उस वक्त तक ये टर्मिनोलॉजी रेलेवेंट रहेंगी कि नहीं रहेंगी कुछ और आ चुका होगा वी नॉट श्योर सो आई थिंक बहुत बढ़ता जाएगा तेज़ी से होगा और जितनी तेज़ी से होगा एसेंशियली वी रियली नीड टू फाइंड आउट अगेन वही स्टेइंग रेलेवेंट वाला हो सकता है बहुत से काम जो हम आजकल कर रहे हैं कर ही नहीं रहे होंगे
बहुत सा काम और तरह से हो रहे होंगे, तरीके बदल जाएंगे, तो स्टे रेलेवेंट, राइट, रीड थ्रू, पढ़ें क्या तरीका होगा, क्या ऐसा नहीं होगा, so that you stay relevant to the technology development, relevant to the way industry is moving, education बदलेगी, हमारे जिन industries में हम काम करें वहाँ पे research बदलेगी, the way products are delivered, the way supply chains are working, the way many other functions are happening, media से related है, ये सब कुछ बदल रहा होगा बड़ी तेज़ी से. बट सेकंड साइड ह्यूमन साइड है, राइट, ऑफ कोर्स ह्यूमंस की डेवलपमेंट थोड़ी स्लो है, राइट, हम शायद उतनी तेज़ी से इवॉल्व नहीं कर रहे होंगे, ऑल्दो हमारी जेन जी, अल्फाज एंड बीटाज एंड जो जनरेशंस आ रही हैं, या बट ऑफ कोर्स दे आर स्टिल नॉट, इफ आई कैन यूज द वर्ड ह्यूमनॉइड्स नहीं, राइट, सो ह्यूमंस है, राइट, अभी उनमें टेक्नोलॉजी इम्बेड नहीं हुई, राइट, चिप्स नहीं आ गई हमारे जहनों में, या अभी हम विजन्स और वो जिसे हम क्या कहते हैं यूबिक्टियस टेक्नोलॉजीज में उस तरह नहीं चले गए कि हम एंटर हुए हैं, हमारे अंदर भी उस सलाहियत कर गई है, और सो अभी प्रॉब्लम जाएंगे, हमारी आइडेंटिटी अभी एक ह्यूमन की है, अभी ह्यूमन, हाँ, सो जो ह्यूमनॉइड वाला पार्ट या वो मशीन्स टेकिंग ओवर, देखने में ऐसे ही लगता है कि मशीन्स इवेंचुअली विल टेक ओवर, ठीक है, देख लेंगे जब होगा, बट द पॉइंट इज जहाँ भी होगा स्टे रेलेवेंट as long as a race you are there, right, so दो sides हैं, एक you in terms of professional side of it, right, understanding what the technology is, कितनी तेज़ी से तरक्की कर रही है, आपके काम कैसे बदलेंगे, way of doing business, और दूसरा एक इंसान कैसे डेवलप करेगा, सो वो भी एक होगी, मेरा तो ख्याल है पॉजिटिविटी है, इंशाल्लाह जो भी होगा इट विल बी गुड एंड विल इवॉल्व, बिकॉज ह्यूमंस विल इवॉल्विंग, अब बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, पहले सेंचुरीज में इवॉल्व होते थे, देन डेकेड्स आए, ईयर्स आए, अब शायद हम एवरी मंथ इवॉल्व हो रहे हैं बड़ी तेज़ी से, तो आई थिंक इट वुड बी एक्साइटिंग टाइम्स एंड लेट्स सी ह्यूमनॉइड्स एंड मशीन्स कमिंग थ्रू, तो इंटरेक्शन कैसा रहेगा, hopefully it would be good, it would be in our lifetime pretty sure, the way things are moving as fast, looking forward to that जी, हाँ जाहिर है, देख हम UMT में बैठे हैं तो एंटी टेक्नोलॉजी है, so of course let's see and positive रहना चाहिए, I think. तो ये बताइए कि लर्निंग एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, बिकॉज दे हैज़ बीन डिस्टेंट लर्निंग एंड दे हैव बीन कि जी हम ट्रेनिंग को फेस टू फेस की बजाय हम ऑफलाइन भी कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन कर सकते हैं डिजिटल फॉर्मेट में, and then now AI has come in. Yeah. So what do you think how our learning is going to change once we have AI embedded into our curriculum, into our daily lives? या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट सोच रहे हैं या करना चाह रहे हैं? What do you think is happening? Right. So I think मैं उसको स्टेप वाइज लेके चलता हूँ. देखिए, एक तो जाहिर है लर्निंग मेथोडोलॉजीज, हम चूँकि एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हुए हैं, सो ऑफ कोर्स यंगर जनरेशन या बिल्कुल बच्चों से लगा के आप वो देखें, लर्निंग जो मेथोडोलॉजी हम यूजुअली पहले पढ़ाया करते थे, वो जाहिर है रेलिवेंट तो है, द वे किड्स लर्न, राइट, द वे यंगर जनरेशन लर्न्स, तो वो अपनी जगह ठीक है, उनके अपने तरीके हैं. आई थिंक वहाँ पे तो बहुत आसानी से ये चीज़ें इम्बेड की जा सकती हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर अर्ली लर्नर्स, वो तो चाहिए उस टेक्नोलॉजी पे रहे हैं, दे आर इन एज जहाँ पे AIs एंड लैपटॉप्स वगैरह के यूजेज एंड ऑल दी स्मार्टफोन्स और सारा कुछ इतना नॉर्मल है उनके लिए कि वो कहते हैं दैट्स द वे टू डू इट, राइट. सो आई थिंक वहाँ पे तो जो चेंजेस हो रही है आसान है. आई थिंक जो उसके बाद जनरेशन हैं जो आर ऑलरेडी इन वर्क फोर्स, राइट, एंड जो सीख रही हैं उनको अडेप्ट करना पड़ेगा, राइट. और देखिए ह्यूमन एलिमेंट अपना, उसका अपना इंटरेस्ट है, उसका अपना एक एक्सपीरियंस है, अगेन मैं थोड़ा सा न्यूरोकेमिस्ट्री की तरफ जाना चाहूँगा. जाहिर है मीटिंग पीपल, राइट, यू एंड मी मीटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू, सो द सॉर्ट ऑफ इंटरेक्शन इज डिफरेंट. है आपकी सर्टेन हार्मोनल चेंजेस हैपनिंग विद ईच अदर, मिलने की वजह से, राइट, आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप मिलते हैं, जी सब कुछ है, बिल्कुल, हाँ जी. सो वो जो ऑल दोज न्यूरोकेमिस्ट्री ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन इज़ देयर, राइट. वो जब आप मशीन या स्क्रीन के दूसरी तरफ करते हैं उसका फ़र्क इम्पैक्ट, राइट, बट उसका एक अलग तरह का इम्पैक्ट है, ठीक है. जब बिल्कुल ख़त्म हो जाती है उसकी अपनी एक फ़वाइद भी हैं, थोड़े से गैर फ़वाइद भी हैं जो नहीं हो पाते. But as technology moves on and distances become sort of irrelevant, so I think आना तो है. आप ऐसे नहीं कह सकते कि हाँ क्लासरूम लर्निंग ही रहेगी, बट जाहिर है कोई बंदा बहुत दूर बैठा हुआ, उसको करने के लिए आपको टेक्नोलॉजी के थ्रू जाना होगा. अब से बहुत पहले, साल पहले, वो क्या होते हैं होलोग्राफ, राइट, हम क्या करते थे, आएंगे, राइट, आ भी गए, कुछ नहीं हुए, वर्चुअल रियलिटी की तरफ हम चले गए, हम वो फिर वो गॉगल्स आ गई. सो आई थिंक सब मिलजुल कर चलता रहेगा, वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी एंड प्रिसाइजली. हाँ, सो इम्पॉर्टेंट थिंग तो ये कि ऑब्जेक्टिव क्या है. आई थिंक दे आर द टूल्स, राइट. सीखना है, हमने सिखाना है, राइट, या सीखना है एक दूसरे, उसके लिए कुछ भी हो सकता है. आप इन पर्सन भी कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू भी कर सकते हैं, बस शायद ये नहीं करना कि टेक्नोलॉजी आ गई तो नहीं, ये बुरी है, ये वो मज़ा नहीं आ रहा. इन पर्सन तो इन पर्सन भी हो सकती हैं. कम्बिनेशन आई थिंक वुड वर्क, मुझे फ्यूचर में लगता है कि एसेंशियली आप ह्यूमंस को बिल्कुल अलग नहीं कर सकते, बिकॉज वही हमने जो बात की, द न्यूरोकेमिस्ट्री ऑफ मीटिंग ईच अदर, राइट, हैज़ अदर बेनिफिट्स, राइट, दैट यू हैव. कि आप एक टीचर को देख रहे हैं, आप एक लीडर को देख रहे हैं,
आप फैसिलिटेटर को देख रहे हैं, वो समझ रहे हैं, और क्रॉस लर्निंग हो रही है बिकॉज यू सी Precisely. योर colleagues, your friends also, and actually you're learning from them, which may not be as I feel कि इतना आसान शायद ना हो एक ऑनलाइन फॉर्मेट में, लेकिन ऑफ कोर्स देयर इज अ वैल्यू टू इट एज वेल. तो आई थिंक वो मेरा ख्याल कॉम्बिनेशन एंड हाइब्रिड मोड्स प्रॉब्ली चलेंगे, बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू ये जो ऑगमेंटेड रियलिटीज़ हैं, यू नो काफ़ी इंटरेक्टिव हो गई, काफ़ी बेहतर होना शुरू हो गई हैं, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट कि वो ज़्यादा अच्छा है, मज़ा आएगी ना, सो आप वर्चुअली भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, एंड मे बी देयर न्यूअर सॉर्ट ऑफ रियलिटीज़ वुड कम थ्रू ऑल्सो उस हमारे मोड में, जिससे हमें शायद ज़्यादा आसानी होगी सिखाने में. अभी हम कहते हैं ना ये चीज़ वहाँ पे है, इस चीज़ को हम ऐसे सिमुलेट कर सकते हैं या गेम खेल सकते हैं, नहीं खेल हो सकता, एट वन पॉइंट टाइम दैट बिकम्स मोर रेलिवेंट ऑल्सो. जी, थैंक यू फॉर योर आंसर. एक तो ये हमारी बात हो गई कि टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स इज़ हियर एंड दिस एंड दैट. मैं क्लाइंट मीटिंग्स में भी जाता हूँ, ऑफ कोर्स वी मीट अ लॉट ऑफ पीपल एंड विद इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, एंड आई हैव नोटिस समथिंग. Pakistani organizations, Pakistani homegrown organizations versus multinationals. जी. जो homegrown organizations हैं, they tend to not spend as much on L&D, staff development. Pakistani जो Pakistani organization. Whereas MNC's attitude is slightly different. I don't know, is it our job to educate our industry more on the importance of spending, time and effort on L&D initiatives? या कोई और रीज़न है इसके पीछे कि वी हैव नॉट बीन एबल टू गैल्वेनाइज आवर इंडस्ट्री, पाकिस्तानी इंडस्ट्री, टू स्पेंड मोर? बिकॉज मेरा बिलीफ तो ये है कि अगर इंसान यानी आपके जो स्टाफ हैं, आपके जो ह्यूमन रिसोर्स है, अगर वो ग्रो नहीं कर रहा, देयर इज नो वे एन ऑर्गेनाइजेशन कैन ग्रो, बिकॉज दे हैव टू ग्रो फर्स्ट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रो. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? I think observation आपकी ठीक है, of course, because MNCs initially sort of brought in this culture, जिसमें ट्रेनिंग डेवलपमेंट और हम L&D की बात करते रहे. अब से अगर कोई 30-40 साल पीछे चले जाए तो of course it is the MNCs, right? All these big names that brought this culture, कि ट्रेनिंग होगी और सब कुछ होगा, वो HR का फंक्शन लेके आए, डेवलपमेंट की बात. उससे पहले सिर्फ टैलेंट अट्रैक्शन थी और थोड़ा मैनेजमेंट हो रही थी, ऑपरेशन, राइट? सो वो लेके आए. ऑफकोर्स द क्रेडिट नीड्स टू गो टू देम, राइट, कि उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत अच्छा काम किया, और ये चीज़ें लेके आए पाकिस्तान में. सो ऑफकोर्स दे वर अहेड, और हम सब लोगों ने जब उस जगहों पे काम किया तो ऑफकोर्स वी लर्न, राइट, अकॉर्डिंगली. सो ये ट्रांजिशन हो रही है अभी. सो वो थी बिल्कुल एक पॉइंट था जब MNCs बहुत आगे थी, और जो लोकल ऑर्गेनाइजेशन वरंट सॉर्ट ऑफ दैट बॉट इनटू द फैक्ट के ट्रेनिंग लर्निंग डेवलपमेंट होनी चाहिए. बट अब ये है कि और ये थोड़ा लाइटर नोट के आई थिंक MNCs अब थोड़ी सी ऑफ कोर्स स्ट्रेच्ड है, राइट, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ. सो ऑफ कोर्स लोकल ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा ग्रो कर रही हैं फास्ट. बहुत से सेक्टर्स में अगर आप देखें तो लोकल आर सॉर्ट ऑफ फास्टर ग्रोइंग. और आई नो आई एम जस्ट गिविंग अ जेनेरिक स्टेटमेंट, बट मोस्ट ऑफ द सेक्टर दैट आई एम वर्किंग थ्रू, उसमें लोकल आर ग्रोइंग फास्टर, राइट. तो उसमें है कि वो ट्रांजिशन हो रही है, राइट, एंड दे आर पुटिंग इन मोर बजट्स. ज़ाहिर है वो कल्चर का एक चेंज है. सो कल्चर का लफ्ज़ लाने का मकसद ये था कि मैं बताऊँ कि ऑफ कोर्स कल्चर काउंट्स, राइट, एंड ऑफ कोर्स कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में बदल रहा है, तो वो दे आर लुकिंग इनटू द फैक्ट दैट लर्निंग एंड डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है. सो MNC अपनी जगह ठीक है, लोकल आ रही हैं उस जगह ठीक है, बट कुछ लोकल्स आर रियली गोइंग फास्टर. I mean, the organization that I'm representing right now, MCCL, of course, we have a huge budget in terms of learning and development, and we're not just in Pakistan, we are operating in 24 other countries. So we do a lot of learning in those countries also. वहाँ से लोग इधर आते हैं, इधर से उन मुल्कों में जाते हैं, and we employ one of the best sort of trainers also. We recently had a sort of strategic summit, and we had trainers coming from US, जो कि online हमारे साथ आए हुए थे, and they were working with us. So I think ये transition हो रही है बड़ी तेज़ी से. So MNCs, of course, all credit to them that they brought in this culture. But ये कि अब local organization, most of the large groups are pretty open, right, to the fact कि learning and development बहुत ज़रूरी है, and लोग grow करेंगे तो organization grow करेगी. Wakil, thank you for your time today. Really appreciate it. Just one light small question. I know you have some other assignment later on as well. Do let us know कि आप क्या सोचते हैं कि HR professionals जो हैं, जो हमारे professions में young blood जो है, उसको क्या advice आप देना चाहेंगे in order to be staying relevant, to be able to grow, to be able to be in leadership positions and so on. जी, I think stay relevant, of course, इसमें बहुत दफ़ा बात हुई, but however I think that it's a very important profession, right? You're talking about humans, right? बहुत ज़रूरी है, और ये ऐसे नहीं कि you're talking about machines or numbers. ये आपके जो customers हैं humans हैं, right? So it's very very important that you make difference into their lives. Make sure whatever you do, you're making difference to people's lives. So उस बात को हमेशा याद रखें. I think with that you would always be doing your best. Thank you. Really appreciate your time. On the behalf of IKL, I would again like to thank sir for your presence today. And we would see you again for another podcast
very soon. Thank you.